Hello everyone, welcome to this next episode of Chit Chat 24. Today I have with me Raju Ranjan. Before he goes on to reveal a new trading strategy, how people can make use of Renko charts, let me go through the review of where the market stands right now. This is a long-term chart of Nifty on a daily time frame. Now, what a lot of people are worried whether the long-term uptrend has ended and whether Nifty has topped out or whether we are entering a bear market, those kind of things. If you see this chart all the way from on the left, you can see 2020, which is about 14 months back, September 2020. Typically, Nifty has, every 1.5 to 2 years, it comes to retest the 200-day moving average. The green line, the green moving average is the 200-day moving average. Now, this was retested the last time only on 24th September 2020 at around 10,800, 10,900. After that, Nifty has gone all the way to 18,600, and you can see how the 200-day moving average has been going up continuously. So another thing which I look at is for the long term, how the 200-day moving average is sloping. Right now, it is going up. Number one, only when it starts coming down. Of course, there is a lot of delay in when the 200-day moving average starts coming down, but at least it gives you an idea whether to look for buying fresh or get out of everything. Those kind of things. So right now, the 200-day moving average is near 16,200, 16,300, and which is still about 800 points lower. Of course, I'm not saying that Nifty will fall by 800 points, but even if it does, it is not going to damage the long-term trend. That is the view I'm seeing. So, any questions of whether the bull run has ended? When I say bull run, I mean long-term bull run. I think that is misplaced as of now. At the same time, it doesn't mean that you can just hold stocks blindly because though Nifty is still well above the 200-day moving average, there are a lot of stocks which have gone below the 200-day moving average. Some stocks are declining very fast. So whatever portfolio stocks you're holding, you need to trail them as per their individual charts. And this is just to get a view of the long-term trend of the market in general. So you need to get out of underperformers and keep a track for outperformers. So whenever Nifty starts going up from here, if and when it happens, you need to look at the outperformers and get out of the underperformers. So that is, of course, for that the RS study on TradePoint is very useful, and that is how you can look at your long-term holdings. So right now, in my view, the long-term is still not damaged, though on the short term, the chart looks scary. So coming to the short term, this is a gap which was filled last time near the low of 16,782. After that, it came back to make a higher low near 16,891, and then a slightly higher low of 16,987. And yesterday it was around that only, 16,999.66. Coming to the chart of Nifty futures, this is the chart which I tweeted yesterday. So you can see here, though 17,000 was broken very briefly for just a minute, not even a minute, a few seconds in the second half, later half, almost towards the close. That time, one thing which I saw, I think Nifty spot did not make a much bigger low, number one. Number two, here again, it is taking support at the gap. If you see the high of this candle over here, which was on 6th December, that was, the low was 16,942. Sorry, the high was 16,997. And yesterday's low was around the same level, 17,000. So as long as 16,940, this low is extremely important. So for me, as long as, let's say, there is a gap down on Monday for whatever reasons, I don't know what the US did last night, but if at all the US futures is opening lower on Monday morning and maybe SGX is down, whatever happens, if 16,940 breaks on futures, then that is going to be a problem. It might go back to down, test this previous low, which is 16 near 16,850 or so. So if 16,940 holds, or maybe even if let's say 17,000 holds, then we can expect a pullback, number one. But then the pullback, because of the steep decline all the way from over the last 1 week from 17,600. In fact, I remember I had tweeted 10 days back that this is an area of landmines.
I had used the word landmines, and that has come out to be true. From 17,600, it has gone down by 600 points in 5 days, and because of which every high which has been made over the last few days will become a resistance. For example, yesterday's high near 17,128, 17,130. So that, let's say 17,140 will be the first resistance. Then yesterday's high, which is near 17,310, that will be the second resistance. Uh, Typically, what one should see if a downtrend has ended is at least Nifty has to, or any instrument for that matter, has to close after a downtrend. It has to close above the previous day's high. That is the first requirement for a downtrend to have ended. So, which means as of now on Monday, it has to close above 16,310, if not at least above 16,140, and maybe then later the previous day's high. So you have to take it level by level. After a steep decline, it is going to be a bit difficult for a steep rise. Of course, you never know, market can surprise everyone. Coming to the chart of Bank Nifty futures, here again, it has not yet broken the previous low, which is 35,459 on futures, and this low, which is 35,645. So that band 35,450 to 35,650 remains support for Bank Nifty futures, and we'll have to see how that behaves. Of course, Bank Nifty is weaker than Nifty. Let me come to the ratio chart. This is the ratio chart of Bank Nifty to Nifty on an intraday basis. This definitely is not strong, but it is again at the support level over here. So if it goes on further, that means Bank Nifty will underperform Nifty more. If it turns up, then Bank Nifty might start outperforming. So these are a couple of things which need to keep kept in mind. Coming to the EOD chart on, intraday chart of Nifty on point and figure, this has already count has been met. This was 17,001, and again now, like I said on the OHLC chart, this is the area near support 16,940, 16,900 band. So all eyes will be on 16,900, 16,950 on the futures on Monday. If that holds, expect a pullback. I would expect at least 17,120 to start with. And if 17,150 is crossed, then of course, like I said, there are resistances everywhere. So 17,200, 17,300, 17,400, all these levels are going to be resistances. One reason why it doesn't seem to be a very panic sell-off is this chart of VIX, which I keep showing on a daily chart. It is near the 200-day moving average. On a weekly chart, it is below the 200 moving average. And on a point and figure chart, this is interesting. This has come down from the level of 20, which I was talking about earlier, and now it has given a double bottom sell. But now these two 45-degree trend lines, it is below one 45-degree trend line, and the second one is near 15. So any close on VIX below 15 will be bullish for Nifty. So right now it is 16.34. So again, below 15, that should be safe for Nifty. On a daily chart of, I have already shown this. Coming to the last chart which I want to show, which again is pointing towards a recovery. When I say recovery, for now we will call it a pullback. Only above 17,300, 17,400, we can say that it is in an uptrend. So till then, it is a pullback, and why a pullback is possible is this monthly put call ratios. You will see the green one is 16,000, 16,800, red is 16,900, yellow is 17,000, then 17,100, and purple is 17,200. Now, like I had said earlier, even in the space with Prashant, any put call ratio above 1.2 for me is bullish for that strike price. Now, this is interesting. Even though Nifty is at 17,000, look at the lowest put call ratio at 17,200. That is still 1.24. So don't start jumping to conclusions. You have to play it level by level. This can change very fast intraday, but this tells me that there can be a recovery next week, at least to 17,200. After that, we'll have to see. And what will tell us whether it is going to recover more, how this put call ratio changes. Let's say it crosses 17,150 and goes to 17,200. How this has changed, whether more put writing has started happening near 17,100, 150, 200, that will tell us whether 17,200 is likely to be crossed. But as of now, all eyes on 16,900 and 16,950. And if that holds, then 17,120, 140, and then 17,200.
So that kind of range can be expected at least for the next couple of days, and after that, weekly expiry will come into play, and then if it continues further, who knows? If 17,300 crossed, we might go back to 17,400, 17,500. So that's all from my side. Raju, कुछ questions है? नहीं तो I'll make you the presenter. नहीं सर, कुछ क्वेश्चन नहीं है सर. ठीक है, you can take over. Now today Raju has something interesting for us based on Renko charts. You can say it is a new observation which he has made over the last few days, weeks, months, and this is quite interesting. We discussed it yesterday, and this is very interesting. So over to you. So last week हम लोगों ने डिस्कस किया था डीए स्मार्ट लाइन के बारे में. So उस पे थोड़ा और एक्सटेंशन हम करते हैं डीए स्मार्ट लाइन को कि और आप कैसे ये कर सकते हो. So ये टाटा स्टील का चार्ट है, इसमें मैंने डीए स्मार्ट लाइन ऐड किया. So यहाँ पे पी पुल बैक, स्टार का, एरो का, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर चुका है. So ये फिर से रिपीट नहीं करता हूँ. इसमें एक और चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बुलिश स्विंग इंपल्स एक्सटेंशन है और बेयरिश एक्सटेंशन है. So आप देखो, so करंट अगर हम जो टाटा स्टील का अगर हम बात करें, so ये जो एरिया जो आता है यहाँ, जैसे मल्टीपल जो काउंट जो दिख रहा है, ये प्रीवियस रेफरेंस लेवल हो सकता है आपका. जैसे अगर मान लो क्या कि ये रेजिस्टेंस लेवल फिर से अगर आता है तो ये सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लेवल, ये इस तरह से आप कर सकते हो. अदर चार्ट में भी अगर सेम, अगर इंट्राडे का अगर हम कर दिया इसी चार्ट को टाटा स्टील, सो ये देखो, सो ये लेवल 1266 या 1413 1413, ये सॉर्ट ऑफ आपका रेजिस्टेंस लेवल है. ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर इधर अगर जाता है तो ये एरिया एक रेफरेंस एरिया, रेजिस्टेंस आप नहीं बोल रहे, रेफरेंस एरिया आपका हो सकता है 1413. सेम वे अगर डाउन साइड अगर आता है यहाँ, सो पहले क्या था 1229 और इस एरिया में कहीं था, सो ये रेफरेंस एरिया होता. सो इसको भी आप ये सॉर्ट ऑफ क्लस्टर काउंट जैसा बिहेव करेगा. करेक्ट, सॉर्ट ऑफ क्लस्टर काउंट. सो इस तरह ये आप आगे के लिए आप देख सकते हो कि मेरा रेफरेंस एरिया क्या है. सो उसके बाद आज का जो ये है, जो न्यू कुछ रेनको पे जो बात करने वाले हैं, सो उसका नाम जो रखा गया है 5 का पंच. पंच? हाँ, 5 का पंच. पंच मतलब पंच वाला पंच की हिंदी पंच? नहीं, पंच, PUNCH. PUNCH सर. अरे बाप रे. सो अभी एक चार्ट हम ओपन करते हैं MCX का. ब्रिक साइज इसमें क्या यूज करना है, लास्ट में मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था. शॉर्ट टर्म 0.25 0.50 ये. सो ये सिंपल रेनको का चार्ट है, 0.25% ब्रिक साइज पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे. अगर आप देखो इसका कॉमन ये एक चीज, इसमें ब्रिक अगर अप जा रहा है तो हम लोग ये व्हाइट ब्रिक जो फॉर्म हो रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है तो रेड ब्रिक फॉर्म होता है. अब एक चीज मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सेम डायरेक्शन में अगर 5 ब्रिक किसी भी डायरेक्शन में अगर फॉर्म होता है, सो लेट्स एग्जांपल हियर, सो दिस इज 1 2 3 4 5, सो 5 ब्रिक रेड ब्रिक फॉर्म हुआ. सो ये इंडिकेट क्या करता है, सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड इंडिकेट करता है, जिसको हम लोग एंकर ब्रिक बोलते हैं. ठीक है, सो ये हो गया एंकर ब्रिक. जैसे ये 5 ब्रिक फॉर्म हुआ और एंकर ब्रिक फॉर्म हुआ, यानी सो नेक्स्ट ब्रिक पे डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड आपको ट्रेड करना है, यानी छठे ब्रिक पे. मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहां पे तुम्हारा कर्सर है वहां पे कंटिन्यूएशन ब्रिक इज 1800, तो 1800 पे सेल करना है, बराबर? एग्जैक्टली. सो कंटिन्यूएशन ब्रिक यानी 1800 का है, सो 1800 पे हमको सेल करना है, 1800 के नीचे या 1800. उस समय आपका सो एंट्री लेवल छठे ब्रिक पे होगा. स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अबव, यानी जहां से ऊपर गया है सो इसके ऊपर का. सो ऑलमोस्ट आपका पकड़ के चलो कि ये अगर 1% का चार्ट है, सो ऑलमोस्ट 5 to 6% होगा. 0.25 का है, सो
ऑलमोस्ट यानी 1.25%, 1.50% के करीब में होगा रिस्क, उससे ज्यादा नहीं। सो रिस्क मिनिमम है। अब इसका एक हो गया स्टॉप लॉस, एक एंट्री हो गया, एक स्टॉप लॉस हो गया। अब इसको कहां पे बुक करें? सो तब तक जब तक कि आपको 5 ब्रेक फिर से रिवर्स साइड नहीं मिले। सो आप यहां आप एंटर किए, अभी यहां 5 ही ब्रिक बना, सो छठा ब्रिक नहीं बना। सो नेक्स्ट एक ब्रिक रिवर्सल यानी 1 ब्रिक बैक, और नेक्स्ट जो छठा ब्रिक इधर बना, सो इधर आपका एंट्री होगा। मेरा कर्सर अगर दिख रहा होगा, सो ये छठे ब्रिक पे मेरा एंट्री होगा। छठा ब्रिक यानी 1800 जो आप बोले। सो वहां से आप देखो ये फिर से 3 ब्रिक बना, नहीं कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूअस हमको अगर ट्रेन अगर ये करना, जब तक 5 ब्रिक मेरा फॉर्म नहीं होता है। सो यहां पे मेरा 1 2 3 4 5। सो अगर जो आप मैंने यह शॉर्ट किया, यहां हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1800 यहां से लेके लॉन्ग नहीं 1670। करेक्ट, तो 1670। तो यहां पे हम लॉन्ग नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज ये 5 ब्रिक बना है, छठे ब्रिक पे मेरा एंट्री है। करेक्ट। सो वेट करेंगे। सो उसके बाद अगर देखो फिर से उसके ऊपर ब्रिक नहीं गया, और फिर से ये 1 2 3 4 5। सो अगर अगर ये रिसेंट चार्ट है, यानी कल अगर ये ब्रिक कंटिन्यू होता है, सो यहां फिर से शॉर्ट सेल करेंगे और स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा। मतलब बहुत ही कंटिन्यूशन ब्रिक सिंपल है है। 1637। कौन सा? अभी जो नेक्स्ट कंटिन्यूशन ब्रिक है वो 1637 है, तो उसके नीचे शॉर्ट है। करेक्ट। सो 1641 का, सॉरी, हाँ सॉरी, 41 41। हाँ 41 का है। नहीं नहीं सर, 41 इज करेंट, 37 का, सॉरी। सो 37 37 कंटिन्यूशन ब्रिक है, सो 37 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। और सो 72 का सिंपल है। स्टॉप लॉस। करेक्ट। सो इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 66 का। हाँ सो यानी किसी भी हालत में आपको पकड़ के चलो कि 1.25 टू 1.5%, यानी 1.5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा हाँ अगर बराबर है। इंट्रा। 0.25 इंटू 6 मतलब 1.5% का स्टॉप लॉस होता है। करेक्ट। अगर जो भी ब्रिक साइज यानी अगर 1% का देखते हैं तो 5 से 6% का स्टॉप लॉस रहेगा। हम्म। सेम अगर 3% पे, सो ये पैटर्न जो है एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 5 ब्रिक जिधर फॉर्म हो उधर आपको ट्रेड लेना है, इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ब्रिक साइज, ये सब पे अप्लीकेबल है। ये ठीक है। ईओडी पे भी सो वर्क करेगा ना? सर एवरी टाइम फ्रेम, एवरी ब्रिक साइज, एवरी इंस्ट्रूमेंट, सब पे काम करेगा। लेकिन इसमें तो जो मेरे को दिखता है कि ये जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उनपे अच्छा वर्क करेगा, नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक मतलब रिलायंस जैसे स्टॉक पे वर्क नहीं करेगा, बराबर? हाँ, तो ठीक है, एक 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 हम रिलायंस का भी चार्ट हम ओपन करते हैं। हम्म। जैसे रिलायंस का ये ईओडी चार्ट है, 1% पे मैंने ओपन कर दिया, अच्छा, ठीक है। रिलायंस की ईओडी पे अच्छा है। हाँ तो ठीक है, इसको ईओडी देख रहे हैं, फिर इंट्राडे में भी अगर देखना है तो देख सकते हैं। अभी जैसे देखो आप, ये जो है ना, इधर आपको फॉर्म हुआ था 5। सो इधर आपका एंट्री हुआ, एग्जिट इधर हो गया हम्म। फिर से। और ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम है उसका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा, लेकिन आपको डायरेक्शन में रखेगा, आपका स्टॉप लॉस मिनिमम रहेगा। फिर आपका एंट्री जो इधर हुआ समथिंग 2233 के करीब में, सो आपको वो 2500 2600 के करीब में लेकर गया। अब अच्छा। अगर हम इसी के चार्ट को अगर इंट्राडे अगर कर देते हैं 0.25, सो आप ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आपका एंट्री इधर हुआ समथिंग 2441, हम्म। और वो 5, ये देखो ये 4 है, 5 नहीं है, करेक्ट। कंटिन्यूअस ये हुआ। सो यहां आपको 1 2 3 4 5, सो ऑलमोस्ट 2410। सो अगर ये देखे तो इस मूव में भी 30 पॉइंट दिया। मतलब इसका एक एडवांटेज ये है कि समझो अभी शॉर्ट में है, और जो अभी का लास्ट तुमने जो शॉर्ट दिखाया, जब स्टॉप हिट हुआ उसके पहले चौथा ब्रिक बनने के बाद ही समझता है कि स्टॉप लॉस किधर रहेगा, करेक्ट? करेक्ट, कंटिन्यूशन का जो वैल्यू है वो। एग्जैक्टली। या पांचवें ब्रिक का उसके सामने वाला ब्रिक पे अभी आप रख सकते हो ना, ऑलमोस्ट। हाँ नहीं, जैसे मतलब मान लो कहने क्या का कि मतलब ये है कि तीसरा चौथा ब्रिक बनने के बाद इमीडिएटली आइडिया आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। हाँ, तो स्टॉप लॉस आपको पहले भी मालूम रहता है कि आपने अगर ये शॉर्ट किया, जैसे मान लो क्या कि लेट्स एग्जांपल हियर, अगर आपने शॉर्ट किया, सो पांचवा ब्रिक यानी आपका ये स्टॉप लॉस है, आपको हाँ ट्रेल नहीं, करने की इनिशियली मैं जरूरत नहीं। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ।
ओके, सो नेक्स्ट 5वें पे आपको एग्जिट होना है, बराबर से। करेक्ट। सो ट्रेलिंग पे भी हम थोड़ा इसको ट्रेलिंग भी आप कर सकते हो, डी स्मार्ट लाइन आप ऐड कर दो इस पे। जैसे जो हम लोग लास्ट एमसीएक्स ऐड किए थे, और इसी पे डी स्मार्ट लाइन अगर ऐड कर दिए, तो एक तो रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस इधर अगर है 5, अब अगर हमको एग्जिट करना है विदाउट कि 5 कब तक 5 नहीं आया, ठीक है, सो ये वाला जो है आपका डी स्मार्ट लाइन स्टॉप लॉस आप रखो। अगर जैसे करेक्ट। 5 अगर बना, जैसे 3 के बना, 4 बना, 5वें का आप स्टॉप लॉस डाल के रख दो, सो 5 हुआ तो आपको एग्जिट हो जाएगा। या अगर 5 नहीं बनता है, डी स्मार्ट लाइन के ऊपर गया, तो आप एग्जिट हो जाओ। तो दोनों आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। मतलब इसको एक तरफ से ये T20 का छोटा भाई बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हो T5। T5। सो दूसरा, अगर हम कोई एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे टाटा स्टील, बिकॉज टाटा स्टील काफी अच्छा सब जगह ट्रेंडिंग ये स्टॉक है। होता है। हाँ, तो ये देखो सिंपल, 1 2 3 4, इधर मैंने, इधर आपका एंट्री हुआ 5 पे, ये कंटिन्यूअस, कहीं भी आपका 5 फिर से एडिशनल 5 नहीं हुआ, डायरेक्ट यहां आया, यानी ऑलमोस्ट 1184 पे जो आपका एंट्री था, 1125 पे, 1184 पे आपका एग्जिट हुआ, फिर से ये एग्जिट, कुछ स्टॉप लॉस नहीं गया, फिर से आपका एंट्री हुआ 5वें पे, और वो कंटिन्यूअस है अभी तक, यहां एग्जिट कर रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ट्रेंड जिधर हो, यानी 5 ब्रिक जिधर फॉर्म हो, उस ब्रिक पे आपको ट्रेड करना है, छठे ब्रिक पे। ये अभी मेरा नेचुरल क्वेश्चन, इस पे ये ऑप्शन पे वर्क करेगा? सर एवरी इंस्ट्रूमेंट, सो कोई ऑप्शन आप बोलो, हम ऑप्शन का चार्ट ओपन करते हैं, सो कल उसमें का चेक करते हैं। 17 to 50 पुट, 17 to 50 पुट, ठीक है। कल सुबह से इसका हाँ, ब्रिक सो साइज अलग लेना पड़ेगा ना? हाँ, ऑप्शन के लिए 3% हम रेकमेंड करते हैं कि 3% आप ब्रिक साइज लो, ओके। रेनको है। सो आप, ये कल का है सर, ये मॉर्निंग का। सो 1 2 3 4 5, यानी छठे ब्रिक जो हुआ इधर कहीं हुआ, ठीक है। मतलब 140 पे एंट्री। हाँ, 140 के करीब में एंट्री, उस डायरेक्शन में कभी भी वो नहीं दिया 5 ब्रिक, सो आपको एग्जिट नहीं करने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिया, यानी ऑलमोस्ट 250 पे आपको एग्जिट के करीब में दिया, 110 पॉइंट, ओके। ऑलमोस्ट 100 110, फिर से आपको, एक काम करो, मंडे से 17,000 कॉल देखो, क्योंकि लास्ट वीक पहले मार्केट ऊपर गया था ना। ठीक है, चेंज 17,000 न्यूमरेटर कॉल। कर रहे हैं यहीं पे, और किसका 17,000 कॉल ना, 17,000 23 दिसंबर। कितना, ये 21 तीसरा है, दिसंबर तीसरा। ना, 23 दिसंबर। हाँ, पीछे ले जाओ उसको पीछे, जब 17,000 से 17,600 गया था तब की बात कर रहा हूँ। ये है आई थिंक, हाँ, यस। करेक्ट। 7 तारीख को, ओके। हाँ, ये 7 तारीख को। सो ये देखो 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट 5 ब्रिक बना, करेक्ट। ब्रिक रिवर्स हुआ, सो आपका एंट्री जो रहेगा वो किधर, 300 पे, हम्म। उस डायरेक्शन में कहीं भी 1 2 3 4 ही है, ये 5 नहीं बना, कंटिन्यूअस ये ऊपर गया, 5 कहीं भी नहीं है, ये 5 टॉप पे बना, 1 2 3 4 5, सो आपका एंट्री 550, एग्जिट 550 के करीब में आपका एग्जिट हो जाएगा। अभी एक चीज दिखाओ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। ठीक है, मैं बाद में भी देख सकता हूँ, लेकिन 17,000 मंथली, 17,500 स्ट्रैडल प्लॉट करो अच्छा, स्ट्रेडल, उस पे मैंने मंथली। चेक किया नहीं है, मंथली ठीक है, चेक कर। रेको रेको यस, मंथली, हाँ। 17,500 500 मंथली, 30 दिसंबर। पहले निफ्टी टाइप करो वो। हाँ, निफ्टी 17,500 30 दिसंबर। और उसको स्ट्रैडल करो ऊपर। ब्रिक साइज कौन सा आप
यूज करते हो सर कुछ? स्ट्रेडल पे मैंने चेक नहीं किया है, अगर इसको 1% हम नहीं, मैंने भी चेक देखें। नहीं किया, मैं अभी वही देख रहा हूँ कि मतलब ये एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन तो उसको पीछे ले जाओ ना, 10 दिन के टाइम फ्रेम। हाँ, ठीक है, तो ये जब इधर जो कहाँ से उसने टॉप बनाया, वो डेट क्या है? ये वाला डेट है ऑलमोस्ट 6 30 दिसंबर, दिसंबर करेक्ट। जब निफ्टी ने टॉप बनाया उसी समय। हाँ, सो उसके बाद उसने उस दिन जो दिया ये 5 हम्म ब्रिक, अगर 700 पे एंट्री 1% भी किया। देखे तो। हाँ, मैंने क्यों 17,500 बोला, क्योंकि उस दिन मतलब निफ्टी वाज अराउंड 17,500 दैट टाइम। ओके, सो ये उस दिन आपको डायरेक्शन दिया ट्रेंड का, करेक्ट। और वहां से कभी भी सेम डायरेक्शन में 5 ब्रिक नहीं बना। हम्म ये इस दिन आके आपको फॉर्म किया 5 ब्रिक ऑलमोस्ट 30 दिसंबर को। तो आई थिंक उस समय आपका फिर से स्ट्रेडल ये चेंज हो जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स, एट द मनी फिर निफ्टी 17,300, मतलब ये फिर भी इसने 700 से 487 का ट्रेड दिया। करेक्ट। अभी यहाँ पे 17,300 का प्लॉट करो। कैडल ट्रायंगल, 17,300 स्ट्रैडल ट्रायंगल। ठीक है, हाँ इसको मैंने सर इस पे चेक किया नहीं है, थोड़ा सा आप चेक करना। हाँ, नहीं नहीं, ये उसका डेट क्या था, जिस दिन 17,500 ने एग्जिट दिया, वो डेट देखो। ये आपका एग्जिट था ऑलमोस्ट 15 तारीख को। 15 15 तारीख। तारीख को। हाँ, तो ये 15 तारीख को 17,300 को देखो। सो ये उसके 15 पहले तारीख उसने को। उसके पहले उसने सेल दिया था। उसके पहले, बहुत पहले ये सेल दिया है। यहां से जो सेल वो दिया है, सॉरी, यहां से जो सेल दिया है वो कंटिन्यूअस है सेल में। इनफैक्ट इसमें और एक आइडिया है मेरे को, जब ऐसे 2-3 स्ट्रैडल डाउन ट्रेंड में है जिसमें कॉल भारी है डोमिनेटिंग, दैट मींस डाउन ट्रेंड इज इंटैक्ट। सर मुझे जो है ना इस पे, अगर हाँ, सर ये देखा है, अगर 3% का भी चार्ट अगर लगाया है तो नॉट बैड। सो 3% पे भी आप देख सकते हो, करेक्ट। स्मूथ ट्रेंड आपको मिलेगा। यस, एक अच्छा आइडिया मिल गया अभी। इनफैक्ट फॉर दोज हु लुक एट स्ट्रैडल चार्ट, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया ऑन रिंको 5 का पंच। 5 का पंच। सो अनदर, जैसे चोला फाइनेंस कल का, ये इसलिए कि मैं इंट्राडे के लिए लाइव मैंने ये ट्रेड भी ये किया था। सो ये देखो आप, अगर चोला फाइनेंस का कल का देखो, सो 1 2 3 4 5 इधर छठे पे ये फॉर्म हुआ कल का, और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सो 5-6% का। हार्डली। हम्म हाँ, यानी कल अगर देखे तो कहीं भी ये 5 ब्रिक रिवर्स फॉर्म नहीं हुआ लास्ट का। करेक्ट। सो ये अगर कोई स्टॉक जो जो होता है ना कि यानी ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 1-2% नीचे आया, और उसके बाद वो कंटिन्यूअस 10% नीचे जाता है, या 1-2% ऊपर के बाद 10% ऊपर जाता है, सो ये तो ये इमीडिएट कैच करेगा। अच्छा, एक बताओ अभी, मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसका स्कैनर। स्कैनर भी आप बना सकते हैं उसका। सो स्कैनर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आई थिंक, जस्ट अ ये सेकेंड। बहुत सिंपल रहेगा। एकदम सिंपल है। सो 5 का पंच के ही नाम से बनाए थे। हाँ, यस, ये है। सो ये सिंपल है। अगर लेकिन किसी को अगर दिक्कत जाता है स्कैनर बनाने पे, तो वो कॉल करके देख सकते हैं, बट हाँ, ये लेकिन पैटर्न। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये सिंपल है, ये बुलिश के लिए, तो इसके ऊपर इसके ठीक अपोजिट बेरिश हो जाएगा। पेरिस के लिए बराबर। सो
अगर ये इंट्राडे का अगर कोई अगर ईओडी का भी अगर हम देखें, सो ईओडी का ऑलरेडी हम लोगों ने रिलायंस का देखा, सो टाटा स्टील देख सकते हैं, या कोई अदर भी अगर आपको कुछ अगर है कोई चार्ट तो हम ईओडी में देख सकते हैं। सो एवरी टाइम फ्रेम पे ये मैंने एक देखा है कि लास्ट चार्ट एक्सिस बैंक का दिखाओ। एक्सिस बैंक 10 दिन में 2 बड़ा स्विंग दिया, ऊपर एंड नीचे। सो आपको ईओडी या इंट्राडे? इंट्राडे, इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे। पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, दोनों बड़ा स्विंग। ये देखो, ये अगर 2 दिन का लास्ट 2 दिन का देखे तो ये गया इधर से 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नहीं फॉर्म हुआ। सो ये टॉप पे आपको एग्जिट दिया 1 2 3 4 5, उसके बाद से वो कंटिन्यूअस सेल में ही है। सो आपका एंट्री इधर बॉटम में और टॉप पे ऑलमोस्ट एग्जिट, और वो कंटिन्यू है। इसका ये भी बोल सकते हैं क्या, जैसे अभी ये लॉन्ग का एग्जिट दिया और 6th ब्रिक पे शॉर्ट, मतलब स्टॉप एंड रिवर्स भी बोल सकते हैं नेक्स्ट ब्रिक पे? कर सकते हैं सर। सो यानी छठे ब्रिक पे आपको अगर एग्जिट हो गया, फिर से अगर शॉर्ट करना है शॉर्ट कर दो, बिकॉज जो कंटिन्यूएशन ब्रेक है उसमें ट्रेंड है। किसी को कोई स्टॉक में स्टॉप एंड रिवर्स ही करना है तो अच्छा सिस्टम है। करेक्ट, ये कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अच्छा, तो और एक स्टॉक लुपिन जो सडनली 10% ऊपर गया था और वापस नीचे आया लास्ट वीक। सर आप जो है ना, आज ये पूरे सिस्टम का टेस्ट कर दिए। इतना इतना रैंडम। लास्ट चार्ट लुपिन। सो लुपिन ईओडी या नहीं, इंट्राडे। ये ईओडी का चार्ट देखो, ईओडी में कितना बढ़िया है। इंट्राडे आप ओपन करते हैं। सो ये इधर फॉर्म हुआ था, उस दिन 10% ऊपर गया था। सो 1 2 3 4 5 यानी ऑलमोस्ट ये 925 के करीब में आपको एंट्री दिया था, 930 925। और पूरे दिन ऊपर में रहा। वो कहां से एंट्री हुआ नहीं, यानी ऑलमोस्ट 900 से जो एंट्री हुआ वो आपको एग्जिट जो दिया 960 पे। और उसके बाद शॉर्ट भी अच्छा मिला 2 दिन, वहां से फिर शॉर्ट करवा। सो उस दिन के लिए लुपिन तो बहुत बढ़िया था वो पूरा। तो यही ये हम तो बोलेंगे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किस दिन कौन सा स्टॉक ये करे, ज्यादा मूव करेगा, लेकिन स्कैनर हुआ तो एटलीस्ट हर एक स्टॉक जो आता है वो ट्रेंडिंग डे में काम आएगा। अच्छा, करेक्ट। सो ये स्कैनर जो मैंने बनाया वो रियल टाइम में भी आप रन कर सकते हो। और से और उसमें जो हाई बीटा स्टॉक्स है उसमें जैसे अडानी एंटरप्राइजेस है, उस टाइप के हाई बीटा स्टॉक्स में कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो आप अगर ये सेल देखो, सेल के बाद वो कभी भी 5 दिया ही नहीं है। तो मैंने ये 5 कहा, ये 5 जो आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि कहीं ये इसमें आप समझ लो कि ये ऑब्जर्वेशन से आता है। सो ये 5 ही क्यों, उसका कोई लॉजिक नहीं। 5 टेस्ट किया नहीं, गया है तो उसमें टेक्निकल लॉजिक है। 5 मतलब नॉन स्टॉप मूव हो 1.25%, 0.25 into 5, करेक्ट। सो ये मतलब एक बिग चीज है, तो स्विंग ऑफ इसलिए मैंने इसका नाम भी 1.25%। 5 का पंच रख दिया। हाँ, बराबर है, नाम अच्छा है। ठीक है सर। तो ओके, ओवरऑल ये था आइडिया आज का। वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ईओडी कवर किया, इंट्राडे कवर किया, ऑप्शंस कवर किया, स्ट्रैडल ट्रायंगल कवर किया, और क्या सब कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम हो गया ये तो। और सर आप जितना रैंडम चार्ट जो आप ओपन हमसे करवाए वो सब में टेस्ट हो गया। करेक्ट। हाँ, ये तुमको मालूम नहीं था कि ये ओपन करने का है। ये चार्ट ओपन करो। सरप्राइज टेस्ट हुआ तुम्हारे लिए, होमवर्क नहीं किया था। हाँ, ओके सर, हो गया फिर। Okay, chalo then, see you all next week, and let's hope for the sake of bulls 16,950, 900 holds, and maybe we can see a rally of at least 200, maybe 250 points or more. So let's see what happens on Monday. See you then. Bye bye. ओके, बाय बाय सर।